Take the next question. Let's say we have to prove that 1 plus a 1 1 1 1 plus b 1 1 1 1 plus c is equal to a b c into 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c plus 1, and which is same as bc plus ca plus ab plus abc. Now in this question the first hint that you are getting is, जो आपको हिंट मिल रही है कि 1 upon a आ रहा है, 1 upon b आ रहा है, 1 upon c आ रहा है, एंड बाहर a b c आ रहा है. हाउ कैन वी गेट दिस सिचुएशन? नाउ if we take out a from r1 and take out b from r2 and take out c from r3, तो क्या होगा? we'll get a b c out. अब a b c अगर हमने कॉमन लिया है फर्स्ट रो से और सेकेंड रो से एंड थर्ड रो से रिस्पेक्टिवली, तो फर्स्ट रो में क्या बचेगा? a कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? 1 upon a plus 1, 1 upon a and 1 upon a, because when you multiply a inside, 1 upon a into a 1 हो जाएगा, 1 into a हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा सेकेंड थर्ड प्लेस पे. सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? 1 upon b plus 1 and 1 upon b. Similarly we'll have 1 upon c and 1 upon c plus 1. Now check करिए, if you add r1 plus r2 plus r3, r1 plus r2 plus r3, what do we get? a b c, 1 upon a plus 1 plus 1 upon b plus 1 upon c, 1 upon a plus 1 upon b plus 1 plus 1 upon c, and 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c plus 1, which are effectively same terms. 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c plus 1 तीनों में आ रहा है रो 1 के एलिमेंट्स. 1 upon b 1 upon c, 1 upon b plus 1, 1 upon c, 1 upon b 1 upon c plus 1. Obviously ये फैक्टर कॉमन है तो we'll take that out. तो taking out 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c plus 1 from r1, तो क्या आ गया? a b c into 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c plus 1. What is left inside? 1 1 1 1 upon b 1 upon c 1 upon b plus 1 1 upon c 1 upon b and 1 upon c plus 1. Now ये तो आइडियल सिचुएशन हो गई, 3 1s आ गए, we can get 2 zeros, therefore we get c1 minus c2 and c2 minus c3. What do we get? a b c, 1 upon a 1 upon b 1 upon c plus 1, and what is left inside? 0, 1 upon b minus 1 upon b minus 1, therefore minus 1, and this becomes 0. Then c2 minus c3, this becomes 0, this becomes 1, this becomes minus 1, and this is 1 by b 1 upon c plus 1. Now obviously we have 2 zeros in the first row, तो हम लोग expand कर देंगे along first row ही only. Expanding along r1, what do we get? a b c, 1 upon a 1 upon b 1 upon c plus 1, a11 c11, a12 c12, a13 c13. Obviously a11 0 है, a12 0 है, तो ये टर्म्स तो 0 हो गई, तो we just have to find c13, which is minus 1 raised to power 1 plus 3. What is left after removing first row and third column? We get minus 1 1 0 minus 1. 1 plus 3 is even, therefore ये तो positive 1 हो गया, into minus 1 into minus 1 is 1, 1 minus 0 which is 1, and a13 is obviously 1 into 1,
Therefore our answer becomes A into B into C, 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C plus 1, which is your final answer. And this is what we had to prove. This is what we had to prove. Now how do we get the second part? उसमें कुछ नहीं करना, we just have to take ABC inside. So what do we get? ABC upon A, ABC upon B, ABC upon C plus 1 into ABC. A and A gets cancelled, B and B gets cancelled, C and C gets cancelled. Therefore we have D into C, A into C, A into B plus ABC. This is your second answer. Now we go for next question. We have minus BC, A square plus AC, A square plus AB. Then we have B square plus BC. Then we have minus AC, and then we have B square plus AB. Then C square plus BC, C square plus AC, and minus AB. And we have to prove this to be equal to AB plus BC plus AC whole cube. We have to prove this. Now in this question obviously पहले हम लोग R1 plus R2 plus R3 चेक करेंगे कि उससे कुछ कॉमन आ जाए, या C1 plus C2 plus C3, एंड वील फाइंड कि दोनों ही से कुछ कॉमन नहीं आएगा. अगर हम कोई दो रोज सब्ट्रैक्ट करें या दो कॉलम सब्ट्रैक्ट करें तो भी कुछ हमको इफेक्टिवली नहीं मिल रहा है. नाउ look at these values. माइनस, लीव अलोन माइनस, BC है, यहाँ AC है, यहाँ AB है. नाउ अगर हम BC में A से मल्टीप्लाई कर दें तो ABC हो जाएगा, AC में B से मल्टीप्लाई कर दें तो ABC हो जाएगा, AB में C से मल्टीप्लाई कर दें तो ABC हो जाएगा. तो व्हाट वी डू इज R1 में हम AR1 कर देते हैं, R2 में BR2 कर देते हैं, एंड R3 में CR3 कर देते हैं. ऑब्वियसली जब हम किसी रो में या कॉलम में कोई फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कॉम्पनसेट करते हैं, तो बाहर क्या आ जाएगा 1 अपॉन A इंटू बी इंटू सी, क्योंकि रो 1 में A से किया, रो 2 में B से और रो 3 में C से. तो यहाँ क्या आ गया माइनस ABC, देन A इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी एंड A इंटू सी स्क्वायर प्लस बी सी. सेकेंड रो में हमने B से करा है तो B इंटू A स्क्वायर प्लस AC, देन माइनस ABC, देन B इंटू सी स्क्वायर प्लस AC. इन थर्ड रो C से किया है तो C इंटू A स्क्वायर प्लस AB, देन C इंटू B स्क्वायर प्लस AB, एंड देन वी हैव माइनस ABC. नाउ इफ यू लुक क्लोजली, हम लोग ने एक पहले भी क्वेश्चन किया था जिसमें हमने रोज में मल्टीप्लाई किया था ABC और फिर कॉलम से ABC कॉमन आउट करा था. नाउ लुक क्लोजली, इन कॉलम 1 A कॉमन है, यहाँ भी A कॉमन है, यहाँ से एक कॉमन आ जाएगा और यहाँ से A कॉमन आ जाएगा. तो थ्रू आउट इस कॉलम में A कॉमन है. यहाँ पे देखिए B एंड B कॉमन, B एंड B कॉमन, तो यहाँ से B कॉमन निकल जाएगा. यहाँ C कॉमन तो C निकल जाएगा. तो देयरफॉर टेकिंग आउट A फ्रॉम C1, B फ्रॉम C2 एंड C फ्रॉम C3. तो एक हम लोग ने पहले भी क्वेश्चन किया था जिसमें हमने ABC से रोज में मल्टीप्लाई किया था और ABC कॉलम से कॉमन निकाला था. सेम इसमें कॉन्सेप्ट हो रहा है. तो 1 अपॉन ABC, और ABC हम कॉमन निकालेंगे तो ABC बाहर, व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड, तो माइनस BC, यहाँ से A कॉमन आ जाएगा तो B इंटू A प्लस C, एंड यहाँ से A हट चुका है तो A प्लस B. यहाँ से हमने B कॉमन लिया है तो A टाइम्स B प्लस C माइनस AC, और यहाँ से C इंटू B प्लस A, और यहाँ से हमने C कॉमन लिया है तो A इंटू C प्लस B, B C प्लस A, एंड यहाँ से माइनस AB. नाउ इफ यू ABC एंड ABC तो कैंसिल हो गया, तो नाउ आवर डिटर्मिनेंट इज माइनस BC, AB प्लस BC, AC प्लस BC, then AB plus AC minus AC
BC plus AC, then AC plus AB, BC plus AB and minus AB. Now अब थोड़ा सा स्मूथ दिख रहा है क्वेश्चन. Now if we try, देखिए यहाँ BC है, यहाँ BC है, यहाँ BC है, यहाँ AB है, यहाँ AC है. Now if we add R1 में let's say R1 plus R2 plus R3 करें तो देखिए क्या होगा, क्योंकि हमको तीनों AB BC CA दिख रहे हैं वहाँ. जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो AB AC AB आएगा, AC आएगा, एक BC कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक BC बचेगा. ना यहाँ पे AB प्लस AC और एक AC से एक AC कैंसिल होगा एंड वील हैव AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC. सिमिलरली यहाँ भी एक AB से एक AB कैंसिल हो जाएगा, ये AB लेट से इसे कैंसिल हो गया. व्हाट इज लेफ्ट? AB प्लस BC प्लस AC. एंड दिस इज द आइडियल कंडीशन वी वर लुकिंग फॉर कि हमारा किसी रो या किसी कॉलम में सेम एलिमेंट्स आ जाएं. यहाँ हो गया AB प्लस BC माइनस AC, BC प्लस AB, देन AC प्लस BC, देन BC प्लस AC एंड माइनस AB. नाउ अब तो बहुत आसान हो गया. विल टेकिंग आउट AB प्लस BC प्लस AC फ्रॉम R1. तो क्या हो गया? AB प्लस BC प्लस AC, अंदर बचा 1 1 1, AB प्लस BC, AC प्लस BC माइनस AC, BC प्लस AC, AB प्लस BC एंड माइनस AB. ऑब्वियसली अब हमें सिर्फ दो जीरोस लाने, तो क्या हो जाएगा? C1 में C1 माइनस C2 एंड C2 में C2 माइनस C3 हम कर दें. व्हाट डू वी गेट? AB प्लस BC प्लस AC तो बाहर है, यहाँ हो गया 0. AB प्लस BC और माइनस ऑफ माइनस AC होगा तो ऐड हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC. यहाँ क्या होगा? AC प्लस BC माइनस BC माइनस AC, विच इज देखिए सारे कैंसिल हो गए. यहाँ पे क्या होगा? 1 माइनस 1 0, माइनस AC माइनस AB माइनस BC, BC प्लस AC माइनस ऑफ माइनस AB विच इज प्लस AB एंड 1 AB प्लस BC एंड माइनस AB. ऑन सिंप्लीफिकेशन इस पोर्शन में हम क्या कर सकते हैं? माइनस कॉमन ले लें तो AB प्लस BC प्लस AC, नीचे भी AB प्लस BC प्लस AC, यहाँ 0. तो देयरफॉर वी कैन टेकिंग आउट AB प्लस BC प्लस AC from C2. What do we get? AB plus BC plus AC whole square, यहाँ 0, यहाँ and in fact C2 से भी और C1 से भी, क्योंकि ये तो 0 हो गया, यहाँ 0 है, यहाँ AB, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉलम 1 से भी हम निकाल सकते हैं from C2 and C1. therefore यहाँ क्या हो जाएगा? क्यूब 0 1 0 0 माइनस 1 1 1 AB प्लस BC माइनस AB, दिस इज B. नाउ अब तो एक्सपैंडिंग अलोंग R1 कर दें. एक्सपैंडिंग अलोंग R1, what do we get? AB plus BC plus AC whole cube into A11 C11 A12 C12 A13 C13. now A11 is 0, A12 is 0, therefore ये तो 0 ही हो गए. C13 कैसे आएगा? माइनस 1 raised to power 1 plus 3. and what is the determinant obtained by removing the first row and third column? 1 minus 1 0 1. ये तो even हो गया, therefore ये 1 हो गया, and 1 into 1 and 0 into minus 1, therefore 1, this is 1, this value is what? 1, A3 is 1, therefore what do we get? AB plus BC plus AC whole cube into 1, and which is what? AB plus BC plus AC whole cube, and this is what we had to prove. AB plus BC plus AC whole cube. This is what we had to prove. Therefore, this is our answer.
Now let's take another question. Now we have to prove that a square b square c square a square b square c square b minus c whole square c minus a whole square and a minus b whole square, and this is b into c, a into c, a into b, and this is equal to a square plus b square plus c square into a minus b, b minus c into c minus a into a plus b plus c. Now in this question आपको ये लगेगा कि यहाँ पे जो सेकेंड कॉलम है इसमें दो चीज़ों का डिफरेंस है, तो वी कैन ब्रेक दिस डिटर्मिनेंट इनटू टू डिटर्मिनेंट्स, कर सकते हैं। अगर उसको करते हैं तो व्हाट विल गेट, डेल्टा इक्वल्स टू, लेट्स से ये डेल्टा है इसकी वैल्यू, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और पहले डिटर्मिनेंट में हम ये यूज़ करेंगे, सेकेंड में ये यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ए सी एंड ए बी, then we'll have plus a square b square c square minus b minus c whole square minus c minus a whole square minus a minus b whole square. We have bc, ac and ab. Now this determinant value is 0. Why? Because two columns are identical, therefore by our property the value of the determinant is 0. Or you can also use c1 minus c2. What will happen? All these values will become 0, and if you expand along this column, ये 0 हो जाएगा. तो basically हमारा determinant अब क्या बचा? a square b square c square. If we take minus 1 out, we have minus 1 common in column 2. Therefore what we do? Taking out minus 1 from column 2. Therefore what we get? minus 1, and यहाँ पे हो गया b माइनस सी होल स्क्वायर, c माइनस a होल स्क्वायर और a माइनस b होल स्क्वायर, एंड हेयर वी हैव bc, ac and ab. Now therefore delta equals to minus 1. Now if we, अब एक कुछ स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि हम दिस कॉलम 1 और कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, वो भी कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, देयरफॉर यू कैन राइट दिस एज ए माइनस बी प्लस सी एंड ए प्लस बी माइनस सी। लेकिन इसमें क्या होगा, हमको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, कुछ भी हमको किसी भी कॉलम या किसी रो में कोई ऐसा फैक्टर नहीं मिलेगा जो कॉमन हो, बिकॉज सेकेंड में अगर यही करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए होल स्क्वायर, तो होगा बी माइनस सी प्लस ए एंड बी प्लस सी माइनस ए। अब इधर और इधर कुछ भी कॉमन नहीं है, देयरफॉर दिस स्टेप कोई हमें फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। नाउ लुक व्हाट विल डू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अगर हम इन्हें एक्सपैंड कर दें तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, BC, AC and AB. Now, अगर हम ये चीज़ माइनस टू बी सी माइनस टू ए सी माइनस टू ए बी को हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर उसमें ए स्क्वायर जोड़ देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, टू ए सी हटाने के बाद ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा, उसमें बी स्क्वायर जोड़ देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली टू ए बी हटाने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, उसमें सी स्क्वायर जोड़ देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा, विच इज सेम। तो व्हाट वी डू, हम C2 में प्लस ऑफ 2C3 कर दें तो क्या होगा, इसका क्या मतलब, कॉलम 2 के एलिमेंट्स में कॉलम 3 के एलिमेंट्स का ट्वाइस करके ऐड करना है हमें। डेल्टा इज माइनस 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC प्लस 2BC, देन
c square plus a square minus 2ac plus 2ac, and then we have a square plus b square minus 2ab and plus 2ab, bc, ac और ab. So this and this gets cancelled, this and this gets cancelled, this and this gets cancelled. Now what we do, अब तो हमें दिख ही गया c1 में c1 plus c2 कर दें तो डेल्टा क्या हो गया -1. We get a square plus b square plus c square. Again we have a square plus b square plus c square, and again we have a square plus b square plus c square. यहाँ आया b square plus c square, c square plus a square and a square plus b square. यहाँ पे bc, ac and ab. Now अब तो बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है. टेकिंग आउट a square plus b square plus c square from c1, तो डेल्टा क्या हो गया -1 टाइम्स rather a square plus b square plus c square बाहर आ गया. We are left with 1 b square plus c square plus a square and a square plus b square, and we have bc, ac and ab. Now अब तो हमें सिर्फ दो जीरोस लाने, तो what should we do? r1 में r1 minus r2 and r2 में r2 minus r3. So what we get? Delta equals to -1 into a square plus b square plus c square, and we are getting 0. b square plus c square minus c square minus a square, b square plus c square minus a square, and bc minus ac. Then r2 minus r3 में 0, c square plus a square minus b square और ac minus ab, and lastly we have 1 a square plus b square and ab. Now c square and c square gets cancelled, a square gets cancelled. What is left? Delta equals to -1 a square plus b square plus c square, 0 0 1 b square minus a square, c square minus b square, a square plus b square. यहाँ पे c कॉमन, b माइनस a, यहाँ a कॉमन, c माइनस b, एंड यहाँ ab. ऑब्वियसली अब हमको रो 1 में b माइनस a कॉमन दिख रहा है, बिकॉज दिस पार्ट कैन बी रिटन एज b माइनस a इंटू b प्लस a. सिमिलरली ये पार्ट को c माइनस b इंटू c प्लस b लिख सकते हैं. तो what is to be done? Taking out b minus a from r1 and c minus b from r2, delta becomes -1 a square plus b square plus c square, and we have b minus a and c minus b. What is left? 0 0 1 b plus a, c plus b, a square plus b square, यहाँ पे c, यहाँ a, यहाँ ab. Now obviously हम लोग चाहें तो और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन एक्सपैंड अलोंग c1. तो इफ वी वांट मोर सिंप्लीफिकेशन तो हमने क्या किया, r1 में r1 माइनस r2 करा. व्हाट डू वी गेट? -1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू b माइनस a इंटू c माइनस b. इन यहाँ क्या आएगा? 0 b प्लस a माइनस c माइनस b, c माइनस a, एंड वी हैव 0 1 c प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a एंड ab. Now b and b gets cancelled. फर्स्ट रो में यहाँ पे c माइनस a है, यहाँ a माइनस c है, दैट इज साइन का ही डिफरेंस है. तो व्हाट वी कैन डू? टेकिंग आउट c माइनस a फ्रॉम r1, तो व्हाट वी गेट? -1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b माइनस a, c माइनस b एंड c माइनस a, एंड अंदर हुआ 0 0 1. यहाँ पे सिंस वी हैव टेकन c माइनस a आउट, तो यहाँ -1 बचेगा, यहाँ 1, यहाँ b प्लस c, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a b और a. नाउ
Now you can expand along, expanding along C1. So what we'll get? Minus 1 a square plus b square plus c square, b minus a, c minus b, c minus a, and we'll have a11 c11, a21 c21 and a31 c31. बट a11 0 है, a21 0 थी तो 0 हो गया. सिंपली मुझे c31 चाहिए. c31 इज व्हाट? माइनस 1 रेज टू पावर 3 प्लस 1, विच इज व्हाट? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करें. थर्ड रो दैट इज थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करें तो क्या बचा? माइनस 1 b प्लस c 1 एंड a. 3 plus 1 is 4 which is even, तो ये तो 1 ही हो गया, into minus a minus b minus c, therefore which can be written as minus a plus b plus c. Now अब हमारी वैल्यू क्या होगी? माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी माइनस ए इंटू सी माइनस बी इंटू सी माइनस ए इंटू माइनस ऑफ माइनस 1 इंटू ए प्लस बी प्लस सी. नो माइनस 1 इंटू माइनस 1 तो प्लस 1 हो गया. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू, इन दोनों में हम माइनस साइन कॉमन ले लें, वो मल्टीप्लाई होके क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा. तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए. This is our answer and this is what we had to prove. This is what we had to prove. A square plus b square plus c square, a plus b plus c, a minus b, b minus c, c minus a. And this is what we had to prove. A square plus b square plus c square, a plus b plus c, a minus b, b minus c, c minus a. Now we'll take the next example. Now we have to prove that sin alpha, sin beta, sin gamma, cos alpha, cos beta, cos gamma, then we have cos alpha plus delta, cos beta plus delta and cos gamma plus delta equals to 0. Now इन क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्री. तो दोनों ही टॉपिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए. नाउ one of the method is we can expand it straight away, but we have to use properties. हमको properties इस्तेमाल करनी है. now ज़रा इसको गौर से देखिए. let हमने कहा let us assume this to be delta. we have sin alpha, sin beta, sin gamma, cos alpha, cos beta, cos gamma. now हम लोग को cos a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, इज cos a cos b माइनस sin a sin b. हम लोग इसे एक्सपैंड कर लेते हैं. ये क्या आएगा? cos अल्फा cos डेल्टा माइनस sin अल्फा sin डेल्टा. सिमिलरली ये हो जाएगा cos बीटा cos डेल्टा माइनस sin बीटा sin डेल्टा. एंड यहाँ हो जाएगा cos गामा cos डेल्टा माइनस sin गामा sin डेल्टा. नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि यहाँ cos अल्फा है, यहाँ cos अल्फा है, यहाँ sin अल्फा है, यहाँ sin अल्फा है. cos डेल्टा sin डेल्टा यहाँ पर है. यहाँ देखिए cos बीटा sin बीटा cos डेल्टा sin डेल्टा यहाँ भी है.
सिमिलरली कॉस गामा, साइन गामा, कॉस डेल्टा और साइन डेल्टा यहाँ भी है ना। अगर हमें इसका वैल्यू 0 लेना है तो या तो हमारी किसी रो या किसी कॉलम में क्या आ जाए, 0 आ जाए, या कोई दो रोज या दो कॉलम सिमिलर आ जाए, आइडेंटिकल आ जाए, नहीं तो फिर एक्सपेंशन तो लास्ट ऑप्शन है ही ना। एक ऑपरेशन करके देखते हैं, C3 में C3 प्लस अगर हम फर्स्ट कॉलम में साइन डेल्टा को मल्टीप्लाई कर दें और कॉलम 3 में ऐड करें तो ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा तीनों से। दैट इज यहाँ पे अगर हम साइन डेल्टा C1 कर दें एंड माइनस कॉस एल्फा वाली कॉलम को कॉस बीटा कॉस गामा वाली कॉलम को अगर हम कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें और माइनस कर दें कॉलम 3 में, तो ये टर्म चली जाएगी। देखिए क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू साइन एल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, cos alpha, cos beta, cos gamma. Then we have cos alpha, cos delta minus sin alpha, sin delta. अब हमने क्या किया, कॉलम 1 में sin delta मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, प्लस sin alpha, sin delta एंड माइनस कॉलम 2 में cos delta मल्टीप्लाई किया यानी माइनस cos alpha, cos delta। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, cos बीटा cos डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा प्लस साइन बीटा साइन डेल्टा माइनस cos बीटा cos डेल्टा। सिमिलरली यहाँ होगा cos गामा cos डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा प्लस साइन गामा साइन डेल्टा एंड माइनस cos गामा cos डेल्टा। इससे क्या हुआ, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये दो टर्म्स कैंसिल एंड ये टर्म्स कैंसिल। देयरफॉर हम लोग को क्या मिल गया, डेल्टा इक्वल्स टू साइन एल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा और 0 0 0। ऑब्वियसली अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो गई, 0। एंड दिस इज व्हाट वी हैड टू do. Now we take next question. If a plus b plus c equals to pi, then prove that sin a plus b plus c sin a plus c, you have cos c tan a 0 minus sin b, we have cos a plus b tan b plus c 0 equals to 0। Now इसमें हम लोग को आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेंगी। गिवन क्या है, a plus b plus c पाए है, तो कुछ आइडेंटिटीज हम लोग को यूज करनी है कि अगर a plus b plus c पाए है तो अगर a प्लस बी लिखा है तो वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी। b प्लस सी लिखा है तो हम लिख सकते हैं पाई माइनस ए, और c प्लस ए लिखा है तो हम लिख सकते हैं पाई माइनस बी। तो लेट्स से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा है तो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई a प्लस बी प्लस सी की जगह पाई माइनस साइन बी एंड कॉस a प्लस बी की जगह पाई माइनस सी, साइन a प्लस सी की जगह पाई माइनस बी, 0 tan b प्लस सी की जगह पाई माइनस ए एंड cos c tan a एंड 0। नाउ अब हमें और आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक पता होनी चाहिए। साइन 180 माइनस थीटा ये साइन थीटा होता है, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, tan 180 माइनस थीटा माइनस टैन थीटा होता है एंड साइन पाई इज 0। यूज करते हैं इनको तो क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू 0 साइन पाई 0 साइन 180
minus theta is sin 180 minus b is what? Sin b. Cos c tan a 0 minus sin b. Cos 180 minus c is minus cos c. Tan pi minus a is minus tan a and 0. Now in this case कोई भी ऑपरेशन हम करेंगे तो इट वोंट रिजल्ट इन एनीथिंग. इट्स बेटर कि हम लोग इसे एक्सपैंड कर दें अलोंग एनी रो और कॉलम. एक्सपैंडिंग अलोंग R1 तो क्या होगा? A11 C11 A12 C12 A13 C13. ऑब्वियसली A11 0 है तो ये तो 0 हो गया. वी जस्ट नीड C12 की वैल्यू कैसे आएगी? फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम एलिमिनेट कर दें. साइन बी माइनस कॉस सी tan ए एंड 0. तो ये तो ऑड है तो देखो माइनस साइन बचेगा. अंदर क्या होगा? साइन बी इंटू 0 is 0 माइनस माइनस प्लस कॉस ए कॉस सी tan ए विच इज माइनस ऑफ कॉस सी इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए. सिमिलरली हम C13 भी निकाल लें विच इज -1 1 + 3. व्हाट इज लेफ्ट? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट करेंगे. साइन बी 0 माइनस कॉस सी माइनस tan ए. तो ये तो इवन है ये तो 1 हो गया इंटू दिस प्लस का साइन बी tan ए and 0 into this would be 0. So this would be sin b sin a upon cos a. ये वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे. तो क्या होगा? A12 is sin b into C12 which is minus of cos c sin a cos, rather this should be cos a plus A13 is cos c and C13 is sin b sin a upon cos a. Check करें. Both these terms are identical. They get cancelled. Therefore answer is 0. Therefore our answer is what we had to prove is 0. We had to prove this to be 0.